سپریم کورٹ نے جو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے ہدایات دی تھی انہیں بری طرح سبوتاش کیا گیا. عوام سے آزادانہ انتخابات کا حق چھین لیا گیا اور ریاستی مشینری اور اداروں کا بے دریغ استعمال کیا گیا. گلگت بلتستان الیکشن نے 26 جولائی 2018 کے الیکشن کے حوالے سے پی ڈی ایم کے بیانیے کی تصدیق کر دی ہے. ہم نے طے کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور عوام کو ان کا جمہوری اور انتخابی حق واپس. گفتگو سنی پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی آج بریفنگ تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے جو کچھ کہا آپ نے سنا اور انہوں نے ان کے نتائج کو مسترد کیا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ حکومت پابندیاں لگاتی پھرے لیکن پی ڈی ایم کے جلسے اپنی روٹین کے مطابق ہوں گے. دوسری طرف جو ہے کرونا کی دوسری لہر ہے وہ شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے اور یہ سب آج میں دیکھ رہا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو دوسری لہر ہے اس میں حیران کن طور پہ کچھ نئی چیزیں ہیں کہ یہ تو ایک تو ڈائگنوز بڑی دیر بعد ہو رہی ہے 3 ہفتے لے رہی ہے اور اس کا زیادہ ہے اور اتنی دیر میں جو موٹیلٹی ہے وہ بڑھ گئی ہے کافی. اس کی وجہ یہ موٹیلٹی اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ جب ہائبرنیشن پیریڈ لمبا ہو جاتا ہے تو وہ مختلف جگہوں پہ وہ ریسٹ کر جاتا ہے. مثلا آج میں اس سے چیف الیکشن کمشنر جو ہمارے ہیں برخورداروں میں سے ہیں سعید مہدی صاحب کے داماد تو وہ ان سے میں بات کر رہا تھا کہ ان کو لے لائن پہ تو ان کو کرونا ہوا ہے. بلکہ سعید مہدی صاحب کو خود اور سعید مہدی صاحب کا میسج بڑا کہ بڑی بری حالت میں ہوں اور ہم سلام آخر والی فکرہ انہوں نے بھیجا اللہ تعالیٰ کو صحت دے. تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا. یہ دیکھیں ارشد بھائی کیسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اچانک کیونکہ یہ اس وقت تک اپنے روٹس بنا چکا ہوتا ہے اور ان کو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی جب خوف پھیلے گا تو کس نے پھر جلسے میں آنا ہے کون جلسے میں کرے گا. لیکن یہ جو گلگت بلتستان والا اعلامیہ یہ کم از کم یہ ایک چیز ہے کہ میں آج وسط اللہ خان نے اتنا اچھا کالم لکھا ہے. اس نے کہا 12/11/2009 کے پیپل پارٹی نے جو پہلے الیکشن کرائے پیپل پارٹی کی 20 سیٹیں تھیں 23 میں سے اب پی ایم ایل این کی 2 تھیں ٹوٹل. اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آ گئی پیپل پارٹی بیچاری کی 1 سیٹ رہ گئی سارا مینڈیٹ ہی ختم ہو گیا اور نواز شریف جس کی 2 تھی وہاں 22 آ گئی. تو یہ مطلب یہ اچھا جی کرونا کی لہر کے حوالے سے اپوزیشن کے جلسے بھی ظاہر ہے اپنے شیڈیول کے مطابق انہوں نے اعلان کیا ہے لیکن کرونا کے حوالے سے ہمیں کن احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے. پمس کے جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر امجد صاحب نے ہمیں ایمرجنسی جو ہے سروسز کا پاکستان میں جو اس کی جو ایمرجنسی ڈیزاسٹرز کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ڈاکٹر امجد انہوں نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب میں آج ہم پڑھ رہے تھے کہ جو دوسرا جو یہ دور گزر رہا ہے کرونا کا اور اس میں مختلف ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ خطرناک ہے. اس حوالے سے کیا ریسرچ کہہ رہی ہے جو اعداد و شمار آپ کو ملے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہمیں سب سے ضروری مسئلہ ہے کہ ہم لوگ محتاط نہیں ہیں. لاسٹ ٹائم جب یہ آئی تھی تو ہم لوگوں نے سارے پریکاشنری میئرز لے لیے تھے لیکن اس دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ابھی جمعے کی ماسک دیکھ لیں آپ کوئی گیدرنگ شادیوں کا دیکھ لیں شادی ہالز بھرے ہوئے ہیں. ہمیں اس کا ابھی تک یہ جو ویکسین اور سب کچھ ہے نا جی جو بیسک پرابلم ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اور میں ڈرانے کے لیے نہیں بتا رہا کہ جب یہ لنگس فائبروزس ہو جاتا ہے تو وہ irreversible ہے. اس لیے اس کی ایک ہی احتیاط ہے اور وہ ہے پریونشن. اور پریونشن یہ ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں ہینڈ ہائیجین اور مطلب گیدرنگز کو اوائڈ کریں اور اسپیشلی اپنے بچوں کو اور اپنے بڑوں کو جو ابو 60 and 70 ہیں ان کو بچائیں. اور دی اونلی تھنگ از کہ آپ ان کو بار بار ایجوکیٹ کریں اسے کیجول نہ لیں اور انہیں یہ سمجھائیں کہ یہ عام نمونیا نہیں ہے. دیکھیں جب وہ اوپیسٹیز جب لنگ نمونیا شروع ہو جاتا ہے نا ڈیو ٹو کورونا تو پھر آکسیجن سیچوریشن کم ہونی شروع ہو جاتی ہے پھر مختلف کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں صرف پچھلی دفعہ ہمارا میڈیا نے بہت ساتھ دیا اور آپ کے کیونکہ اوریا صاحب کا ہیلتھ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے یہ ہمارے سیکٹری رہے ہیں میں نے ان کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ تھا. تو آپ دیکھیں ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے اوریا صاحب ہمارے استاد بھی ہیں کہ آپ اس وبا سے بچیں اس کا پریونشن ہے بس.
घर में ये अगर तो लास्ट टाइम भी अगर हुकूमत ने SOPs दिए थे, अगर मसाजिद के हवाले से दिए थे, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट तो पूरी तरह हुआ, लेकिन अभी भी कोई ऐसे SOPs दोबारा आपने नहीं दिए। अभी हुकूमत ने जो NOCOC का इजलास होता है उसके अंदर सारी गाइडलाइंस आती हैं, उसके मुताबिक तो अमल हो जाता है। जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान होता है वहाँ पे भी हो रहा है। अभी मसाजिद के हवाले से तो अभी नया कोई SOP नहीं आया। के बारे में भी हम अभी स्वाय DHA की मसाजिद के आपको वो डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही, बाकी तो हर जगह वही हाल नहीं है। दूसरा मास्क नहीं है। और मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये इंटरनेशनली जो आपको बता रहे हैं ना कि ये इस तरह फैल रहा है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि अभी तक इट इज नॉट 100% करेक्ट कि ये वो हाथ लगाने से इन्हें ट्रांसमिशन का अभी तक पता ही नहीं है कि वो ड्रॉपलेट से फैल रहा है या वो हवा से फैल रहा है। ड्रॉपलेट से क्योंकि हम कहते हैं कि क्लोज स्पेस में आप कम वहां ना रहें, इसलिए कि वो ड्रॉपलेट से फैल रहा है। और ये जो है, आप किसी कमरे में अगर 10 लोग बैठे हैं तो डेफिनेटली वो अफेक्ट होते हैं, एयरबोर्न हो जाता है, एयरबोर्न हो जाता है। मतलब आपके जो आप जिसे कहते हैं ना छींक से फैलता है, खांसी से फैलता है, तो आपके ड्रॉपलेट्स हवा में जाते हैं और वो कुछ देर स्टे करते हैं हवा में, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है जी। लेकिन मास्क के बारे में भी वो कहा जाता है कि खास किस्म का मास्क हो, वो 3rd 4th लेयर मास्क हो। हमारे यहाँ भी बराए नाम फैशनेबल किस्म के मास्क निकले हुए हैं, और उसके तो उसके वो तो प्रिवेंशन ही कोई नहीं है उसके जरिए। आप ठीक कह रहे हैं मास्क का, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 100% ना से 60-70% इवन सिंपल कपड़ा भी ना, आप रुमाल भी रखें ना, आप टिश्यू रख के छींक लें या खांसी करें ना, तो उससे भी बड़ी प्रिवेंशन है। लेकिन अगर जब आप ओपनली छींकते हैं या ओपनली खांसी करते हैं तो आप उस पूरे माहौल को ना इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो इतना अरसा गुजर चुका है और आपने रिसर्च भी बहुत की है, आपने मुख्तलिफ अद्वियात जो है मरीजों के ऊपर जो है वो टेस्ट की हैं, तो अब तक तो ये सामने आ जाना चाहिए ना कि ये 2 या 3-4 अद्वियात हैं जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और उसको जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी यकीनी बनाई जानी चाहिए। यानी फौरी तौर पे अगर सिम्टम्स आए तो ये इस्तेमाल करना शुरू कर देखें। वो मैं आपको 2 इंटरेस्टिंग, आपको मैं सबसे पहले ना ट्रम्प साहब को क्या दिया गया, उन्हें दिए गए रेमडेसिविर और स्टीरॉइड, और साथ उन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिए गए। अच्छा, रेमडेसिविर का ये है कि वो उसकी सिवियरिटी को कम करता है, डेक्सा प्रूवन है, बाकी विटामिन और वो जो आपके कावा वगैरह या एस्प्रिन वगैरह, विटामिन डी, जिंक एंड विटामिन सी हाई डोजेज में, शहद, कलवंजी, ये सारी चीजें बेसिक जो इसमें कॉन्सेप्ट है कि आप बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाएं जो जरासीम से लड़ सके, उस वायरस से लड़ सके। वंस अगर आपका लंग इन्वॉल्व हो गया, आपके सीटी स्कैन में वो ओपेसिटीज आ गई, देन आपको ना स्टीरॉइड भी मिलेंगे, आपको डेक्सामेथासोन भी मिलेगा, आपको रेमडेसिविर भी मिलेगी, और सबसे जरूरी है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप होनी शुरू होती है ना जी, फिर आप घर में नहीं रह सकते, देन यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, और वो 90 से जब भी नीचे होगी तो देन यू नीड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन सेचुरेशन इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये लंग आपका इफेक्ट कर गया, आप उससे रिकवर भी हो जाते हैं, तो रिकवरी के बाद कितने % चांसेस हैं कि आप जो है वो उसका लंग को ठीक होने में टाइम लगे, या बिल्कुल वो रिवर्सेबल नहीं है, क्या है? ये देखें जी, यही बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है। वंस अ लंग इज फाइब्रोज, इट्स फाइब्रोज, फिर आप उसको ना जो बाकी उसके टिश्यूज है ना वो फैल के वो काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वंस फाइब्रोसिस हो गया दैट्स इरिवर्सिबल। दैट्स व्हाई हम लोगों को कहते हैं कि खुदा का वास्ता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए प्रिवेंशन पे जोर दें, इसको लाइटली ना लें। ये लाइटली लेंगे तो हम सारे सफर करेंगे इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ ग़िज़ाएं बता दें हमारे नाज़रीन के लिए, हम हमेशा पूछते हैं। मैंने और भी एक वो भी देखी थी कि एक आदमी जैसा वो करता कि मैं स्टीम लेता था, उसके अंदर मैं लौंग डाल लेता था, और उससे मुझे एक थोड़ा सा उससे रिलीफ मिलती थी बहुत ज्यादा। और ये सब उसमें कोई हरज नहीं है, सिंपल स्टीम, लौंग डाल के स्टीम। और ये जो आप इसकी डाइट का कह रहे हैं ना, वो और साहब मेरे से बेहतर जानते हैं कि कुरान शरीफ में कलवंजी के मुतालिक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के मुतालिक, शहद के मुतालिक, कावा, ये सारी चीजें इसमें इंडिकेटेड हैं। वजह ये है कि ये शफा भी हैं, इनमें तमाम अमाइनो एसिड्स हैं, इनमें हर
जो हमारी एक रिक्वायरमेंट है ना वो एक खजूर से भी पूरी होती है। शहद, खजूर, कलवंजी, प्रोटीन्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें एडवाइजेबल हैं। सिर्फ ये जंक फूड शूड ये जो है इनसे खत्म करते हैं, हाँ। जी हाँ, जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपकी मोहब्बत, आप इतने थोड़े से अल्टीमेटम पे तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब देखिए, असल मसला वही है कि इम्यूनिटी, लेकिन उस्मान साहब जो मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों, मुझे था कि शेप्स बदल गया है। यानी वो जो अगर उसका रेड कलर था ना कभी पहले, अब वो ग्रीन कलर हो गया। उसमें जो पहले इम्यूनिटी हमारी किसी को डेवलप हुई थी ना, उसको दोबारा अटैक भी हो सकता है, और वो हो रहे हैं। शक्ल बदल कर हमला, शक्ल बदल के हमला, और वायरस की बड़ी बड़ी कैफियत है। लेकिन हमने अब कोई एहतियात नहीं, कतअन कोई एहतियात नहीं। यानी हम एक हफ्ता ले रहे हैं स्कूल बंद करने के ऊपर। ओ भाई, एक हफ्ते में क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा? किसी बच्चे को हो जाए अगर तो, या किसी नौजवान को हो जाए तो, और वो कोई नहीं, सारे कोई अपना फंक्शंस भी हो रहे हैं। स्कूल तो उन्होंने यूरोप में बंद नहीं किए, अमेरिका में बंद नहीं किए, वहाँ खुले हुए हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम दुनिया को देख के फिर फैसला करेंगे कि दुनिया इसमें क्या कर रही है, कि एजुकेशन का बड़ा नुकसान। उस्मान साहब, वहाँ आपको पता है कि गोरा तो इतने फासले पे खड़े होता है वहां पर, कभी देखे एसओपी पे अमल दरामद कराएं, इतनी शिद्दत से अमल करता है, जिससे पूछे वो घर के अंदर बैठ के वो मास्क नहीं उतारता। वो तो मैंने पागल हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के जो लोग इतनी हाइजीनिक सूरत हाल के अंदर रहते हो कि वो टिश्यू पेपर, उनके ऊपर हर्बल स्प्रे, ये वो इस हालत में तो क्या करते होंगे? वहाँ तो बीमारी का खौफ भी बहुत है ना। और जो हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे वो कितने गई? कोई नहीं सर, अल्लाह ने बचाया था। ना इमरान खान ने कुछ किया, ना गवर्नमेंट ने कुछ किया, ना किसी और ने कुछ किया। और एक मैं किया पता किन लोगों ने है? जिन लोगों ने अपना उठे हैं रात को तो उन्होंने खैरात की है, उन लोगों ने किया। उनके सदके वो पागलों की तरह जो निकले हैं ना इस मुल्क के अंदर, उनकी अल्लाह ने सुनी है, वरना किसी ने कुछ नहीं किया। अगर कोई मुझे कहे कि हम कम से कम 12 प्रोग्राम हम चीखते रहे थे कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो, नहीं करते थे। मेरा ख्याल आपको क्रेडिट जिसने लेना ले ले, किया अल्लाह ने सिर्फ। दोबारा भी हमें ये अपील करनी चाहिए, फिर दोबारा वही अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात से हम दो चार हों। ये नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कल जो फैज़ाबाद पे धरना हुआ उसे क्या खोया क्या पाया।